before that this is a season, this is a time where we need to keep our mind, our focus on Jesus, on what He has done. ये वो समय है जहाँ हमें अपना ध्यान को यीशु मसीह की ओर केंद्रित करना जरूरी है. It is not about who's preaching, who's singing and things like that, but it is about Jesus. इसके बारे में नहीं है कि कौन प्रचार कर रहा है, कौन गीत गा रहा है, लेकिन सब कुछ यीशु मसीह के बारे में है. So may we together meditate on what He has done. तो हम एक साथ आज उसमें ध्यान को केंद्रित करने पाए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या स्थापित किया है. John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो ऐसा प्रेम है जो कभी सुना नहीं गया, कभी बोला नहीं गया. इसलिए वो प्रेम के लिए एक अलग शब्द लोग ने तैयार किया और बाइबल में डाला था. वो एक अलग अनोखा शब्द है, कोई इसके बारे में वर्णन भी नहीं किया, क्योंकि कभी वो प्रेम प्रकट नहीं किया गया था. सबसे बड़ा प्रेम था, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा. This love is a supreme love. It was a love that was not heard of, it was not spoken of. No one understood this love. So a new type of love, a new type of word was used for this type of love. And you know, John always uses love as a verb, more than a noun. ये जो यूहन्ना है, वो प्रेम को एक क्रिया शब्द के जैसा इस्तेमाल करता है, यानी कि एक कार्य के जैसा. यूहन्ना के लिए प्रेम ऐसा कुछ नहीं है जो एक जगह में खड़ा रहता है. वो काम करता है, वो कार्य करता है. And what is that verb? What is that verb? That verb is Jesus. और वो क्रिया क्या है? वो क्रिया क्या है? वो स्वयं यीशु मसीह. यीशु मसीह खुद परमेश्वर का प्रेम है. He is that verb. He is that active love of Jesus that kept moving, healing, touching the people. वो वही क्रिया था, परमेश्वर का प्रेम था जो रोग को छूता था, उनको चंगा करता था, उनको छुटकारा दिलाता था. Jesus is God's love coming to you. God's love cannot be with Himself. It's an action. It cannot leave you. It comes to you. परमेश्वर का प्रेम खुद के पास नहीं रहता है, आपसे दूर नहीं रह सकता है. वो खुद आपके पास में आता है, और वो यीशु मसीह है जो आपके पास में आया. His love is action. It is a verb. And when Jesus walked this earth, He did not stop Himself to touch the people. जब यीशु मसीह धरती में था, अपने आप को रोक नहीं पाया, लोग को छूने के लिए रोक नहीं पाया. यहाँ तक कोढ़ी को भी छुआ, जो जिसका बीमारी था, जो बहरा था, जो अंधा था, उसको भी छुआ. His hands demonstrate His love. यीशु मसीह का जो हाथ है उसका प्रेम को दर्शाता है. और आज मैं उसी विषय के बारे में कहना चाहता हूँ. The topic that I want to preach today is His hands came back for you. उसका हाथ आपके लिए वापस आया. His hands came back for you. And I want to draw your attention to the hands of Jesus. और मैं चाहता हूँ कि आपका जो ध्यान है यीशु मसीह के हाथों के ऊपर में रहे. शुरू से अंत तक imagine the hands of Jesus. For beginning to end, I want you to focus your mind on the hands of Jesus. You know, in Hebrew, even the word Yeshua, it begins with a letter that means hand. इब्रानी भाषा में भी यीशु का जो शब्द है वो एक ऐसा अक्षर से शुरू होता है जिसका मतलब हाथ होता है. हाथ. क्या हाथ? उद्धार का हाथ, छुटकारा का हाथ, चंगाई का हाथ. वो हाथ जिसमें प्रेम भरा हुआ है. What is that hand?
It is a hand of salvation, the hand of liberation, the hand of healing. The hand of Jesus speaks of his love. You know, one more interesting thing I want to tell you. When I was studying this word hand, in the Hebrew language, if you take the word hand, and again you repeat the word hand, and you join the words together, that means the repetition of hand, it becomes a word for love, beloved. इब्रानी भाषा में मैं सिर्फ छोटा सा कहना चाहता हूँ, जब आप हाथ का शब्द को लेंगे और फिर से हाथ का शब्द को लेंगे और दोनों हाथ का शब्द को जोड़ देंगे, उसका मतलब प्रेम होता है. It means the one who loves someone very much. Because when you love someone, you embrace them, you hug them, you touch them, you help them. The hands of Jesus is an expression of love. यीशु मसीह का जो हाथ है, वो उसका प्रेम को दर्शाता है. क्योंकि जब आप किसी से प्रेम करते हैं, आप अपना को रोक नहीं पाते हैं, आप उसके पास जाते हैं, गले से लगाते हैं, उसका मदद करते हैं. The hands of Jesus loved you so much that he spread his hands on the cross. यीशु मसीह का हाथ जो है, उसमें उतना प्रेम छुपा हुआ है कि उसका दोनों हाथ क्रूस में फैला हुआ था और आपका उद्धार हुआ. The hands of Jesus came back for you. उसका हाथ आपके लिए वापस आया था. So he always touched the people. He always healed the people. वो अपना आप को रोक नहीं पाया. वो हर समय लोगों को छूता था, उनको चंगा करता था. He could not stop himself. And when he went on the cross, और जब उसने क्रूस के ऊपर में वो उसको चढ़ाया गया था, तो जो बहरा था वो देखा कि वही उंगली जो उसके कान में गया था और उसको चंगा किया, अब वो उंगली और नहीं हिल रहा है. The deaf person saw that the fingers that were inserted inside his ears and healed him, those fingers are not moving. The one who was paralyzed saw that the hand that healed him is now bleeding. जो लोग बीमार थे, लकवा थे, देखे कि वही हाथ जो उसको चंगा किया, उसमें अब खून बह रहा है. Peter saw that the same hand that caught him when he was sinking in the water, now that hand has no shape. पतरस ने देखा कि वही हाथ जो उसको पानी में डूबते समय उसको उठाया था, वही हाथ खून से लथपथ है. The adulterous woman saw that that finger that wrote on the sand and saved her from judgment is now completely wounded. Verse 3, जब व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसने यीशु मसीह का उंगली को देखा दिखते हुए, जिस कारण वो बचाई गई थी, वो उंगली और वो हाथ वो खून से लथपथ है, उसमें घाव है. You know, some people say even if Jesus' bones were not broken, we cannot say that his bones were not dislocated. एक व्यक्ति ने कहा कि अगर यीशु मसीह का हड्डी नहीं टूटा था, हम ये नहीं कह सकते कि उसका हड्डी स्थान से खिसक नहीं गया था, क्योंकि उस दौरान क्रूस में चढ़ाए जाने के समय में उनका हड्डी भी जगह से खिसक जाता था. और ये रोमन लोग इतना दुष्ट है, these people are so evil that first they will nail your hands and then they will make you hang. और ये लोग इतने कठोर दिल के लोग थे, ये लोग सबसे पहले अपना उसका जो व्यक्ति का हाथ को खीले से ठोकेंगे, उसके बाद में वो क्रूस को खड़ा करेगा ताकि उसका जो शरीर है वो नीचे गिरेगा. And when the body would fall down, there are times when the bones would get dislocated. और जब उसका जो शरीर का वजन था जब नीचे की ओर गिरता था, तो कंधा का कभी-कभी जो हड्डी था वो खिसक जाता था. Not only the shoulder bones would get dislocated, the elbow would get dislocated. Not only the elbows used to get dislocated, the wrist also used to get dislocated. और ये हड्डी के खिसक जाने के कारण क्या होता था, उसका हाथ जो है और लंबा दिखता था. The
The hands used to look so long. Not only that, but the way the nails were pierced in Jesus' hands went through his nerves, important nerves. जब यीशु मसीह को खीले होते, ये हाथ में नहीं, लेकिन जो यहाँ पे जो नस है, जो मूल्य नस है, important नस सब होता है, जो हर एक काम को नियंत्रण में लेता है, it controls the action. That was pierced, and every movement was stopped. और वो खीले होते जाने के कारण उसका हर एक हाथ का जो मूवमेंट था, वो सब रुक गया, वो सब शांत हो गया. Every movement stops. His hands came back for you. You must understand and remember, उसका जो हाथ है आपके लिए वापस आया था. His hands came back for you. That is why Thomas says, until I see that wounds in his hands, I will not believe. Until I see the wound in his side and touch them, I will not believe. इसलिए थॉमस कहता है, जब तक मैं उसके हाथों में वो घाव को नहीं देखूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा. वो घाव इतना खतरनाक था. जब तक उसको उसके छाती के सामने जो घाव था, उसको मैं नहीं छूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा. And John chapter 20 verse 27 says, Jesus says to Thomas, put your finger here and see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. यूहन्ना का 20:27 में लिखा है, फिर उसने थॉमस से कहा, हाँ अपनी उंगली डाल और मेरे हाथ देख, अपना हाथ फैलाकर मेरे पंजीर में डाल, संदेह करना छोड़ और विश्वास कर. Now the median nerves, the important nerves of Jesus' hand were crushed. It was wounded. Some of his bones were probably dislocated. But how his hands were moving? उसका हाथ में घाव का निशान था, उसका जो मेन नर्व्स था, उसमें घाव गिरा, लेकिन अब उसका हाथ हिल रहा है. Now his hands are moving. How his hands are moving now? Because his hands are not limited, it has been extended and works even more. उसका जो हाथ है अब सीमित नहीं है, वो सीमा का बाहर में काम करता है. His hands are not limited. The wounds have not disabled his hands. It has extended his hands. वो घाव जो था, उसका क्षमता को कम नहीं किया, लेकिन उसका क्षमता को बढ़ा दिया. अब उसका हाथ जो है असीमित हो चुका है. It has been extended. His hands have come back for you. उसका जो हाथ है वो आपके लिए वापस आया था. You know, it's very interesting that Thomas touches that and he says, "My Lord and my God." जब थॉमा वो घाव को छूता है, वो कहता है कि मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर. प्रभु का जो शब्द है वो रोमियो लोग के लिए इस्तेमाल किया जाता था. रोमियो साम्राज्य के लिए, उनका जो प्राचीन लोग था, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था. The word Lord was used for Roman authorities. You can see that in Matthew 27:63. मत्ती का 27:63 पद में आप देख सकते हैं कि प्रभु का जो शब्द है वो पिलातुस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रोम लोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और ये लोग रोम का रोचों से उससे डर रहे थे. कमरे में बंद थे, दरवाजा बंद था, डर के मारे बैठे हुए थे. These people due to fear, they were sitting inside a closed room with fear. Fear of the Romans, that they will do something to them. They were full of fear. But when he sees Jesus, he says, "My Lord and my God." लेकिन जब वो यीशु मसीह का हाथ का निशान को देखता है, वो कहता है, मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर. परमेश्वर आपसे आज कह रहा है कि आपका जीवन के ऊपर में सिर्फ उसी का कानूनी अधिकार है कि इसका हाथों में एक छाप है, एक निशान है, और कोई हाथ का अधिकार नहीं है. God is speaking to you and telling you it is only His hands
that has legal rights over your life. Because it is his hands that has legal marks in his hand. There is no other hand that is supposed to be legal in your life. Only his hands, because only his hands has the marks, the legal marks, no other hand. No other hand. Not the hand of your boss, not the hand of your enemy, not the hand of your disease. Only the hand of Jesus, because his hands are legal. सिर्फ उसी का हाथ का आपके ऊपर अधिकार है, क्योंकि उसका हाथ कानूनी है। उसका हाथ का कानूनी अधिकार है क्योंकि उसके हाथों में वकीला का छाप है, ना आपका बीमारी। डॉक्टर का हाथ, आपका दुश्मन का हाथ, आपका बीमारी का हाथ, आपका बॉस का हाथ का कानूनी अधिकार नहीं है। It is only the hand of Jesus. His hands came back for you. उसका हाथ जो है आपके लिए वापस आएगा। And his hands have been extended even more. और उसका जो हाथ है अब वो सीमा का बाहर में काम करता है। It is only his hands that are legal. That is legal. The children of God are failing to understand what is legal and what is illegal. परमेश्वर का जो लोग है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कानूनी है और क्या कानूनी नहीं है। जो आपको मार रहा है वो कानूनी नहीं है। जो भी आपके जीवन में आ रहा है वो कानूनी नहीं है। यीशु मसीह का हाथ में घाव का निशान है, वो कानूनी है। It is legal. No other hands. आप बहुत सारे हाथों से डरते हैं, लेकिन वो सारा हाथ वो illegal है। There are many hands that we fear of, but all those hands they are illegal. And it is those hands that we can trust. और वही हाथ है जिसके ऊपर में आप भरोसा कर सकते हैं। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तभी भी उसके हाथों से वो क्या कर रहा है? वो नाश्ता बना रहा है, वो आशीष दे रहा है। When he was still raised from the dead, he is making breakfast for his people. He is providing. His hands did three things. It was used to invoke belief. It was used to provide bread. You know, he breaks bread, and it was used to give blessing. उसका जो हाथ से वो तीन चीज करता है। विश्वास को बढ़ाता है, रोटी प्रदान करता है, यानी कि भोजन देता है और आशीष भी देता है। उसका हाथ अभी भी काम करता है। His hand works even till now. You know, one day I was praying, and the Lord spoke to me and said, "Do you know why I made Adam? I formed Adam from the dust." जब मैं एक बार प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु को पूछा नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझसे बात किया और बोला, क्या तुझे पता है कि मैंने आदम को धूल से क्यों बनाया? I asked why. And the Lord said, because when I make Adam from the dust, after I make Adam from the dust, he will go into the Garden of Eden. After he goes into the Garden of Eden, he will rebel and sin against me. After he will sin against me, he will go under a curse. After he goes under a curse, again he will get a death sentence. When he gets a death sentence, again he will go back to dust. But when he goes back to dust, he can still remember that it is my hands that raised him up from the dust. परमेश्वर मुझे बोला कि जब आदम को मैंने मिट्टी से उठाया, मैंने इसलिए उसको मिट्टी से बनाया क्योंकि जब वो वाटिका में जाएगा, वाटिका में जाने के बाद में वो फिर मेरे विरुद्ध में पाप करेगा। जब मेरे विरुद्ध में पाप करेगा, उसके ऊपर में श्राप गिरेगा। जब श्राप गिरेगा तो मृत्यु उसके ऊपर में आएगा। जब मृत्यु उसके ऊपर में आएगा, वो फिर धूल में चल जाएगा। लेकिन जब वो धूल में चल जाएगा, उसको ये याद रहेगा कि मेरा हाथ धूल से उसको उठा सकता है। हालेलुया। It is the same hand that can come with you. You may be broken, you might be go to the dust, but it is the same hand that will come back for you. And when you go back to the dust and in your situation, His hands came back for you. आप कोई भी परिस्थिति में जा सकते हैं, आप टूट सकते हैं, आप धूल हो सकते हैं, कोई बचा हुआ नहीं, कुछ भी चीज बचा हुआ नहीं, सारा आशा आपका जा चुका है, लेकिन वो धूल से ही उसका हाथ आपको आके फिर से आपको बना सकता है। वो हाथ आपके लिए वापस आया था। It's that hand that came back for you.
And it is those hands that is now the resurrected hands, and it is active and works in your life. वो हाथ अब पुनर्जीवित हाथ है और आपका जीवन में सक्रिय है, यानी कि काम करता है और सीमा का बाहर में काम करता है. And it is that hands that you can trust. वो हाथ है जिसके ऊपर में आप भरोसा कर सकते हैं. जब मैं प्रार्थना करके आया, प्रभु ने मुझे बोला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आएंगे, वो लोग मुझे एक दाखस के जैसा इस्तेमाल करते हैं. कुछ जब स्पेशल ओकेजन होता है, दाखस का जैसा उपयोग किया जाता है, वैसे मेरा उपयोग किया जा रहा है. या जैसे कभी कभी दवाई का उपयोग किया जाता है, वैसे प्रकार से मुझे उपयोग किया जा रहा है. But this is a time where you should not harden your hearts. You must give your life to Him completely. ये वो समय है जहाँ आपको अपना पूरा जीवन उसको देना जरूरी है. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर लोग आपको देखेंगे तो सोचेगा कि आप प्रभु को नहीं जानते, लेकिन वो गलत है. आप प्रभु को जानते हैं और प्रभु ने आपका जीवन में कुछ काम को भी किया, यानी कि आपके जीवन में कुछ गवाही दी है, उसके बावजूद भी आप यीशु मसीह में विश्वास नहीं कर रहे हैं. यानी कि कुछ सेलेक्टेड काम भी है, चीज भी है लाइफ में, या आप उसको चुन के कह सकते हैं कि ये काम यीशु मसीह की है, उसके बावजूद भी आपने अपना पूरा जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया. There are some people that they are selected things in your life. You can pinpoint and say, these are the testimony that Jesus only has done, but still you have not given your life to Jesus. People may think that you are a stranger, you do not know Jesus, but it is false. Do not use Him as an occasional wine and as occasional medicine. एक उपयोग करने वाला दाखरस या एक दवाई के समान उसको इस्तेमाल मत कीजिए. Give Him your life completely. Give Him your life completely. And some of you, if you do not know Jesus, there are two questions that is very important. और कुछ लोग अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, दो सवाल हैं. एक चीज है, अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, आप घर जा सकते हैं. अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, आप अगले साल फिर से आ सकते हैं. अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, तो कभी कभी आप आ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन सवाल ये नहीं है. सवाल ये है कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तब तो क्या हो? आप ऐसे ही घर नहीं जा सकते. ये सवाल में आपको एक प्रश्न बिंदु डाल के इसको छोड़ नहीं सकते. उसको आपको एक खड़ी पे डाल के ही करना पड़ेगा. आप एक प्रश्न बिंदु उसमें डाल के फिर वापस घर नहीं जा सकते. ये प्रश्न में आपको एक खड़ी पे यानी कि एक उत्तर ढूंढ के घर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा जीवन उसके ऊपर निर्भर करेगा. आपका पूरा जीवन जो है उसके ऊपर निर्भर करेगा. बाइबल में लिखा है कि हम सब यीशु मसीह परमेश्वर के क्रोध के नीचे नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आता है वो क्रोध से हमें निकालने के लिए. अगर उसको हम इनकार करेंगे तो हम वही स्थिति में, वही क्रोध में, उसी में रहेंगे और उसी में हम भर चले जाएंगे. Jesus came to save us from condemnation so that we will not be condemned. यीशु मसीह अगर परमेश्वर का पुत्र नहीं है तो आप घर जा सकते हैं, फिर आप गुड फ्राइडे में आ सकते हैं, फिर आप ईस्टर में आ सकते हैं, फिर आप कुछ कभी दिखाई दे सकता है. कुछ लोग तो बीते हुए दिन में ऐसा दिखाई दिया जो बहुत साल से भी नहीं दिखाई दिया. कलिशा में भी बाजार में, ठीक है. तो लेकिन अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, फिर तो आपका जीवन ये सवाल के ऊपर में निर्भर करता है. आप घर ऐसा ही नहीं जा सकते, उसमें एक प्रश्न बिंदु ही डाल के घर नहीं जा सकते. उसका उत्तर, उसका आंसर उसमें खड़ी पे डाल के ही आपको घर जाना बहुत जरूरी है. हर समय
आप एक प्रश्न बिंदु के साथ में नहीं आ सकते। So let us give our life completely to Him. हमारा जीवन जो है पूरी तरीके से उसे देना जरूरी है। और ये जो उत्तर है, ये जो सवाल है, उसका सिर्फ दो ही उत्तर है। या तो आपको भाव से भरा हुआ हाथ को इनकार कर देंगे, या आप बोलेंगे अगर ये हाथ मेरे लिए ही उसका हाथ मैं खीले होके गए, तो यही हाथ के ऊपर मैं अपना भरोसा कर सकता हूँ। There are only two answers. Either you reject those hands that were wounded, or you say, if those hands were wounded for me, it is those hands that I can trust. और ये दो उत्तर है। शुरुआत में मैंने योना 3:16 से शुरू किया, लेकिन अंत में मैं योना 21 का 20 से खत्म करना चाहता हूँ। The beginning I began with John 3:16, but I would like to end with John 21:20. It says, but Jesus loved the disciple following. योना का 21 का 20 में एक बात लिखा है, वहाँ पे लिखा है, पतरस ने फिर कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था। It says Jesus loved the disciple following. I cannot explain this verse in detail now, but it actually has the implication that Jesus was loving this disciple who was following him. यीशु मसीह ये चेला से प्यार किया जो उसका पीछा कर रहा था। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, लेकिन हर एक व्यक्ति उसको वापस प्रेम नहीं करेगा। God loved the world very much, but it is not that the world will always love Him. There will be people who will not love Him. But when you love Him back, that is a completed love. लेकिन अगर आप उसको वापस प्रेम करेंगे, तो वो प्रेम एक संपूर्ण प्रेम है। वो एक तरफ का प्रेम नहीं है, वो पूरा किया गया वाला प्रेम है, संपूर्ण है। And that is so interesting that this disciple followed him back. Jesus loves everyone, but not everyone will love him back. You know, it's like a girl who loves a boy. एक उदाहरण की ओर से एक लड़की एक लड़का से प्रेम करती है। That love still exists. वो प्रेम जो है वो जीवित है, वो जिंदा है, लेकिन उसके अंदर नहीं है। एक तरफ का प्रेम है, वो लड़का से वो प्यार करती है, बहुत प्रेम करती है, लेकिन एक समय आता है जब वो लड़का उसके पास में आता है और कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तब क्या होता है? उसके अंदर में म्यूजिक बजना शुरू होता है ना, गीत आता है। There is music that comes inside her. When the boy himself comes and proposes her, and that he loves her, you know, her silence becomes a song. There is a music, there is a tune that comes inside her. Love can exist when it is alone, but it cannot sing if it is not shared. प्रेम जो है वो जिंदा रह सकता है अगर वो एक तरफ का है, लेकिन वो गीत नहीं गा पाएगा अगर दोनों लोग प्रेम नहीं करते। उसमें वो मधु नहीं आएगा, उसमें वो गीत नहीं आएगा। And that is a completed love. और जब आप उससे वापस प्रेम करते हैं, तो वो एक संपूर्ण किया गया वाला प्रेम है। It is a completed love. It is a completed love. I would like to end with a short story and we will close. मैं खत्म करूँगा, छोटा सा कहानी से खत्म करूँगा। एक सैनिक था और वो सैनिक ने राजा के विरोध में कुछ गलत काम किया, ठीक है, बहुत साल पहले। There was a soldier and the soldier did something wrong against the king many years ago. And the king sentenced the soldier to death. और ये राजा ने तय कर दिया कि ये सैनिक को मौत का दंड होगा।
कल शाम को जब उसका जो सैनिक लोग हैं वो एक घंटी को बजाएंगे, बड़ा वाला घंटी जैसा हमारे चर्च में होता है, उस समय में ये सैनिक को हम लोग दंड देंगे, उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया था। तो दूसरा दिन आया और वो घंटी बजने का समय आया। So the next day came and the king said that the next day during the evening when the bell will ring, this soldier will be put to death. But when the time came for the bell to ring, the bell was not ringing. लेकिन जब समय आया, वो घंटी बजने का समय आया और वो सैनिक को मारने का समय आया, वो घंटी नहीं बज रहा। तो सब सोचा कि क्या हो रहा है, घंटी नहीं बज रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। All were thinking that there is no bell, no sound from the bell. And after some time, they saw that the fiancée of the soldier, she came with her wounded hands, and she said that when the time of the bell was about to ring, she climbed up to the bell and she held the big bell in her hands, the one that climbs to the bell, she held it with her hands. ये जो स्त्री थी, उसका साथ उसका विवाह होने वाला था, fiancé। ये लड़की क्या की, जो घंटी था वहां पे वो चढ़ गई और जो घंटी बजता है उसको अपने हाथों से पकड़े ताकि उसका आवाज नहीं आएगा। तो वो हिल रहा था, वो बहुत भारी था, वो लोहा से बना हुआ था, लेकिन वो स्त्री जो थी उसको पकड़ नहीं, और उसके वजह से उसका हाथ घायल हो गया था, लेकिन वो घंटी का आवाज नहीं आ रहा था। और वो राजा के पास में आई और अपना हाथ को दिखाई। And the king saw the wounded hands of this girl, and this thing touched the king, and he pardoned the man and he said, this person will not die. और वो जो है, वो ये लड़की का जो निशान को देखा, उसका हाथ पूरा खून से भरा हुआ है, और ये बात राजा का दिल को छुआ, और वो सैनिक को बोला कि इसके ऊपर में जो मृत्यु का दंड है वो हटा लिया जाए, और वो सैनिक बच गया। अगर आप यीशु मसीह के हाथ को देखेंगे तो यही उदाहरण यीशु मसीह के हाथों में अपनाता है। If you see, it applies to the hands of Jesus. If you see close to the hands of Jesus, there is wounds. If you see more deeply, there is blood. But if you see more deeply, his hands are full of love. अगर आप उसका हाथों को देखेंगे गहरी तरीके से तो उसमें चोट है, और गहरी तरीके से देखेंगे तो उसमें लहू है, उसमें निशान है, लेकिन और गहरी रीति से देखेंगे तो उसका हाथ प्रेम से भरा हुआ है, उसका हाथ आपके लिए वापस आया है, और आज भी आपके जीवन में वो काम करना चाहता है। His hands are active. It not only came back for you, it still wants to work in your life. It still wants to work. उसका हाथ जो है अभी भी आपके जीवन में काम करना चाहता है। May God bless all of us in this word. परमेश्वर सभी को वचन से आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। Dear God, our Heavenly Father, Lord, we thank you that your hands are the ultimate expression of your love. Your hands not only formed us, your hand delivered and saved us. तो हाथ परमेश्वर से हमें मिट्टी से बनाए हैं, लेकिन क्रूस में वो वापस आया था हमें बचाने के लिए। Lord, help us to cast ourselves on the wounds, to depend on those hands, to cast our life on those wounds. परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम जैसा थॉमस ने फिर हाथों को देखा, फिर छाती का वो निशान को देखा, हमें वो अनुग्रह दे परमेश्वर के अपने जीवन को वो हाथों में हम सौंपने पाए, उसके ऊपर भरोसा करने पाए, क्योंकि जो हाथ हमारे लिए घायल हुआ वही हाथ में हम अपना जीवन को रख सकते हैं, और वही हाथ हमें सही सलामत रखता है। It is those hands that keep us safe. We thank you, Jesus. We thank you for the biggest ever known love that mankind has known.
वो प्रेम के लिए धन्यवाद परमेश्वर जो सबसे बड़ा है, जो समझ के परे है, जो समझ का ऊपर है। We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord. Help us to be immersed in that love, understand that love. हमें वो अनुग्रह दे ये प्रेम को समझने के लिए, ये प्रेम में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। We thank you for everything. We thank you for everything. We thank you for everything, Jesus. सारा चीज के लिए धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद। Lord, as we go back also to our homes, help us to keep meditating on what you've done for us. हम जब कभी वापस जाएंगे, Lord, हमें स्मरण देना, याद देना, अनुग्रह से, Lord, हम उसमें अध्ययन करने पाए, तेरे प्रेम के ऊपर अध्ययन करने पाए, हम उसमें अध्ययन करने पाए। We thank you for Lord for everything. सारे बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से